what are the factors which affect the body temperature, what is heat balance, how to regulate the body temperature, and applied physiology associated with the temperature of the body. So normal body temperature. You all know that humans are homeothermic, that is, they maintain core body temperature. Oral temperature is mostly around 36 to 37.5 degrees centigrade. In Fahrenheit, it comes to 97 to 99 degree Fahrenheit. Axillary temperature is slightly lower, almost 1 degree lower. Rectal and esophageal temperatures are slightly higher than the oral temperature. Skin temperature, it varies with the environment. We all know in cold it is to be lower, in heat environment it has to be higher. Scrotal temperature is carefully maintained or regulated at 32 degrees centigrade. Why the scrotal temperature has to be regulated? Because spermatogenesis take place at this temperature. अगर कोर टेम्परेचर, अगर आपका स्कॉटल टेम्परेचर इस टेम्परेचर से ऊपर या नीचे हो जाएगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर नहीं होगा. Shell temperature, it refers to temperature of the surface. Shell, we understand that it is a surface, and core is the internal temperature. So core temperature refers to the deeper body structures. It is maintained at a constant value. So core temperature obviously has to be slightly higher than the oral temperature, that is, it is around 37.8 degree centigrade. Rectal, vaginal and esophageal temperatures represent the core temperature. So mostly in our clinical practice we take rectal temperature because rectal temperature tells us about the core temperature. Esophageal temperature can be taken at heart level. It is a good index of core temperature. Rectal temperature, as I told you, is accurate method. Now lethal temperature, there is an upper limit of lethal temperature and there is a lower limit of lethal temperature. Lower is 26 degrees centigrade. At this temperature cardiac arrhythmias are going to take place, and upper lethal is 43.5, जैसे कि heat stroke में होता है. तो heat stroke में temperature 43.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है and it is lethal to the human being. Core temperature of 41 degree centigrade for prolonged period causes irreversible brain damage. तो 41 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए prolonged टाइम के लिए. थोड़े टाइम में प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर prolonged टाइम के लिए पर्सन उस टेम्परेचर को एक्सपोज्ड है तो it would be leading to brain damage. Regulation of body temperature is necessary. Why? Because obviously all the functioning of the enzymes, all other metabolic activities, whatever chemical reactions are taking place, they have to take at a constant body temperature. So it has to be regulated properly. Now what are the factors which affect the body temperature? We all know there is a diurnal variation. Diurnal variation मतलब day night variation. तो डे में टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम होता है. मैक्सिमम इट इज इन द इवनिंग 5 to 6. इन इन्फेंट्स एंड ओल्ड एज टेम्परेचर रेगुलेशन इज पुअर. सेक्स में फीमेल्स का थोड़ा सा लोअर होता है एज कम्पेयर टू मेल्स. क्यों? क्योंकि एक तो उनका BMR लो होता है, मेल का BMR ज़्यादा होता है, एंड सेकेंडली दे हैव अ थिक लेयर ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू. नाउ साइज मीन बॉडी मास सरफेस एरिया. तो उसके अकॉर्डिंगली हीट प्रोडक्शन, हीट लॉस होता है. फूड इनटेक, अगर आपने प्रोटीन फूड ज़्यादा लिया है तो आपका टेम्परेचर ज़्यादा रेज्ड होगा. एक्सरसाइज, वी ऑल नो एक्सरसाइज में टेम्परेचर बढ़ता है. एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, पायलोइरेक्शन, क्लोथिंग, ये सब चीज़ें कि हम कैसे एटमॉस्फेयर में हैं, हमारा इन्वायरमेंट हॉट है या कोल्ड है, हमने कैसे कपड़े पहने हैं, वो सब डिटर्मिन करता है टेम्परेचर को. स्लीप, सोते समय आपके बॉडी का कोर टेम्परेचर 1 डिग्री के आसपास कम होता है. इमोशंस आपका टेम्परेचर रेज करते हैं, जैसे कि आपको गुस्सा आ रहा है या आपको फियर है तो आपका टेम्परेचर राइज होता है. अब हीट बैलेंस. हीट बैलेंस रेफर्स टू द बैलेंस बिटवीन द मैकेनिज्म ऑफ हीट गेन एंड हीट लॉस. कितना टेम्परेचर बॉडी ने गेन किया है और कितना उसने लूज किया है, उसका जो बैलेंस है उसे कहते हैं हीट बैलेंस. हमें पता है कि हीट गेन कहाँ से होगी, या तो इन्वायरमेंट से होगी. इन्वायरमेंट गर्म है तो बॉडी में हीट गेन होगी. और प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन कहाँ से हो रही है? जो भी अंदर केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं उनसे हीट प्रोडक्शन होती है. तो मस्कुलर एक्टिविटी, मसल टोन, इन सब से हीट गेन होगी. लॉस कैसे होगी? रेडिएशन,
कंडक्शन, कन्वेक्शन आप सब लोग पढ़ चुके हैं, इवेपोरेशन यू हैव ऑलरेडी रेड इन फिजिक्स, व्हाट इज रेडिएशन, व्हाट इज कंडक्शन, हीट लॉस के मैकेनिज्म्स हैं टू द इन्वायरमेंट। हीट लॉस लंग्स से होती है, कैसे? इवेपोरेशन से, रेस्पिरेशन के एक्सपिरेशन के ड्यूरिंग हमारी हीट निकलती है बॉडी से। एंड पैंटिंग इन एनिमल्स, इफ़ यू हैव सीन द डॉग्स हॉट एनवायरनमेंट में हमेशा पैंट करते रहते हैं, टेक आउट देयर टंग, दैट इज इवेपोरेशन एंड हीट लॉस इन एक्सक्रीटा। सो यू कैन सी दीज आर द डिफरेंट मैकेनिज्म्स। ये हीट लॉस हो रहा है इवेपोरेशन से, कन्वेक्शन से, रेडिएशन से, स्वेट से, ठीक है। हीट गेन कहाँ से हो रहा है? हमारा सीधे सोलर रेडिएशन से, ग्राउंड से हमारे रेडिएशन से आ रहा है, स्काई से आ रहा है। ये मैकेनिज्म्स हैं हीट लॉस और हीट गेन के। अब रेगुलेशन कैसे होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। Temperature control system of the body maintains the core temperature constant within a range of plus minus 1 degree Fahrenheit of the normal temperature. Normal body temperature कितना है? इसका set point क्या है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट पे हमारा constant body temperature, core temperature set point है ये under physiological conditions, normal conditions. Temperature regulation follows negative feedback. We all know what is positive feedback. Positive feedback का मतलब है कि कोई चीज़ बिगड़ी है तो वो और बिगड़ती जा रही है। नेगेटिव का मतलब है कोई चीज़ बिगड़ी है तो ऐसा सिग्नल गया है कि वो उस चीज़ को सही करेक्ट करेगा, तो दैट इज़ नेगेटिव फीडबैक। तो इसमें टेम्परेचर रेगुलेशन नेगेटिव फीडबैक को फॉलो करता है। मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स इन आवर बॉडी दे फॉलो दिस नेगेटिव फीडबैक। Thermoneutral zone, this refers to the range of ambient temperature within which the metabolic rate is at a minimum metabolic rate जिस टेम्परेचर पे हो सके उसे हम कहते हैं थर्मोन्यूट्रल जोन। इसमें क्या है कि बॉडी को कोई एनर्जी स्पेंड नहीं करनी बियॉन्ड द बेसल मेटाबॉलिज्म। बेसल मेटाबॉलिज्म बस मेंटेन होगा और कोई एनर्जी स्पेंड नहीं होगी। इसमें अडल्ट्स होता है 26 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूबॉर्न 32 to 34, प्री मैच्योर 35 डिग्री सेंटीग्रेड। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द थर्मोन्यूट्रल जोन। लोअर लिमिट जो है वो क्रिटिकल है। इसके नीचे क्या होगा? द मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन ऑफ अ रेस्टिंग एनिमल इंक्रीजेस टू मेंटेन द थर्मल बैलेंस। प्रेफर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर वो रेंज है जिसमें थर्मल कंफर्ट है, जिसमें हम कंफर्टेबल रहते हैं, वो है आपका प्रेफर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर। कितना है? स्किन टेम्परेचर अराउंड 33 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट, लेवल ऑफ बॉडी एक्टिविटी एंड द क्लोथिंग विच अ पर्सन हैज worn. नाउ वी कम टू द कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम है क्या? जो अपन ने कहा कि नेगेटिव फीडबैक फॉलो करता है, वो कंट्रोल सिस्टम क्या है? इट comprises the hypothalamus integrated autonomic, endocrine and skeletomotor responses. इसके components क्या हैं? 3 components है बेटा, एक thermoreceptors, एक hypothalamus और तीसरा thermoregulatory effector mechanisms. Thermoreceptors वो रिसेप्टर जो कि टेम्परेचर की वेरिएशन को रिकॉर्ड करेंगे। हाइपोथैलेमस थर्मोस्टैट है, मेन रेगुलेटरी सेंटर हमारा हाइपोथैलेमस है and it is an integrator of temperature control system and then there are the effector mechanisms. अब thermoreceptors दो तरीके के हैं, they can be peripheral और they can be central. Peripheral में either superficial मतलब स्किन के ऊपर प्रेजेंट है या deep मतलब जो अपने डीपर ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर प्रेजेंट है। तो सुपरफिशियल जो हैं वो करीबन 90% उनमें से कोल्ड रिसेप्टर्स हैं। हीट रिसेप्टर्स कम होते हैं, कोल्ड 90% कोल्ड को रिसीव करते हैं। डीप रिसेप्टर्स जो हैं वो विसरा में हैं मतलब ऑर्गन्स में हैं जो कि कोर टेम्परेचर को लेंगे। दे ऑल्सो मेनली डिटेक्ट द कोल्ड। Unmyelinated C fibers from the warm receptors and A delta fibers from cold receptors. ये fibers हैं जो कि CNS को जाती हैं। Central thermoreceptors, they are mainly present in the pre-optic area and the anterior region of the hypothalamus. ये regions हैं आपके जो कि temperature control में important है। कौन कौन से?
pre-optic area and anterior region of hypothalamus. Also detected in midbrain, lower brain system and even in the spinal cord. Impulses from the receptors are carried in lateral spinothalamic tract. Again ये चीज़ important है कि temperature कहाँ से carry हो रहा है, lateral spinothalamic tract से. The set point of normal body temperature is 98.6. हमने ये बात करी ली. Hypothalamic neurons involved in thermoregulation can be divided into 3 types. Either sensing neurons, either heat loss center, anti-rise center या heat production and conservation center. तो सेंसिंग न्यूरॉन्स कौन से हैं जो कि सेंस कर रहे हैं और आगे भेज रहे हैं इंफॉर्मेशन को. कहाँ हैं? इन इंटीरियर हाइपोथैलेमस. दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरिफेरल एंड द सेंट्रल रिसेप्टर्स. हीट लॉस सेंटर ऑल्सो नोन एज एंटी राइज. एंटी राइज का मतलब कि हीट को राइज नहीं होने देना, बढ़ने नहीं देना. न्यूरॉन्स इन द प्री ऑप्टिक एंड इंटीरियर हाइपोथैलेमस, ये है आपका हीट लॉस सेंटर, प्री ऑप्टिक इंटीरियर हाइपोथैलेमस. स्टिमुलेशन प्रोड्यूसेस हीट लॉस बाय क्या क्या होगा? वेजोडाइलेटेशन. वी ऑल नो कि वेजोडाइलेटेशन होगा तो हीट लॉस हो जाएगा. स्वेटिंग होगा तो इवेपोरेशन से हीट लॉस होगा. एनिमल्स में पैंटिंग होगा, जीभ बाहर निकालेंगे एनिमल्स तो हीट लॉस होगा. एंड डिक्रीज्ड हीट प्रोडक्शन बाय इनहिबिटिंग द स्वेटिंग. हीट प्रोडक्शन और कंजर्वेशन सेंटर ये कब काम करेगा? जब हीट बढ़ानी है, सर्दी है तो वी हैव टू इंक्रीज द हीट. सो हीट प्रोडक्शन. न्यूरॉन्स इन पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस. रिमेंबर दिस, एंटीरियर हाइपोथैलेमस में हीट लॉस सेंटर है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में हीट प्रोडक्शन सेंटर है. स्टिमुलेशन कंजर्व्स द हीट. कैसे कंजर्व करने के लिए क्या होना चाहिए? जो पेरिफेरल वेसल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होनी चाहिए. एंड इट एक्टिवेट्स हीट प्रोडक्शन बाय शिवरिंग. शिवरिंग जो है वो हीट को प्रोड्यूस करता है. तो शिवरिंग, अगर आपको कोल्ड टेम्परेचर में शिवरिंग का मतलब क्यों हो रही है शिवरिंग, वो आपकी बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है टू प्रोड्यूस हीट. एट इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट थ्रू रिलीज ऑफ TSH. TSH आपकी हीट को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ये आपकी हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है. कैसे? मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा के. तो ये मैकेनिज्म्स हैं आपके हीट लॉस के, वेजोडाइलेटेशन, स्वेटिंग, पैंटिंग, और आपका हीट प्रोडक्शन के कौन से हैं? शिवरिंग, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट. अब ये आप देख सकते हैं, ये डायग्रामेटिक फ्लो चार्ट है, रिप्रेजेंट कर रहा है. सेंट्रल थर्मोरिसेप्टर सेंसर्स ने इंफॉर्मेशन ली, पेरिफेरल ने ली, हाइपोथैलेमस को भेजी, हाइपोथैलेमस ने आगे या तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को भेज दी एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम को भेज दी. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कोलिनर्जिक, अल्फा 1 एड्रिनर्जिक, बीटा 3 एड्रिनर्जिक, बीटा 2 एड्रिनर्जिक. इससे क्या हुआ? स्वेट ग्लैंड्स को इंफॉर्मेशन गई. स्वेट ग्लैंड्स ने क्या किया? हीट लॉस कर दी इवेपोरेशन से. ब्लड वेसल्स को गई, ब्लड वेसल्स ने क्या किया? आपने या कॉन्स्ट्रिक्ट हुए या डायलेट हुए एज रिक्वायर्ड. ब्राउन फैट, अब ब्राउन फैट क्या होता है ये अपन अभी डिस्कस करेंगे. बच्चों में ज़्यादा प्रेजेंट होता है ब्राउन फैट जो है, ये इन्फेंट्स में स्पेशली हीट को कंजर्व करने का मैकेनिज्म है. एंड स्केलेटन मसल्स में शिवरिंग करा के हीट प्रोडक्शन कर दी. So these are the neural factors which are affecting the thermoregulation. अब इफेक्टर रिस्पॉन्स. हमने पहले क्या किया था कि कौन सा सेंटर है जहाँ से रेगुलेशन हो रही है, कौन से रिसेप्टर्स हैं. रिसेप्टर्स ने रिसीव किया इंफॉर्मेशन, हाइपोथैलेमस को गई जो कि सेंटर है. अब उसने आगे इफेक्टर ऑर्गन्स को इंफॉर्मेशन भेज दी है. तो उससे क्या होगा? बहुत ऑब्वियस है कि अगर कोल्ड ज़्यादा है तो हीट को हमें कंजर्व करना है, हमें उसको लॉस नहीं होने देना. तो कंजर्व कैसे करेंगे? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देंगे. जो भी पेरिफेरल वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, हीट लॉस नहीं होगा. पाइलो इरेक्शन, जो अपन कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना, पाइलो इरेक्शन हो जाएगा. मैकेनिज्म्स इंक्रीजिंग स्वेट हीट प्रोडक्शन. क्या क्या प्रोडक्शन से हमने अभी बात करी थी? शिवरिंग से इंक्रीज होगा. इंक्रीज्ड एक्टिविटी एंड अदर बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज. हम लोग ऐसे करते हैं, हाथों को मलते हैं कि हमारी इंक्रीज्ड एक्टिविटी है. इंक्रीज्ड TSH सिक्रीशन, TSH सिक्रीशन से क्या होगा? बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा.
increased catecholamine secretion. Again, these two things will increase the basal metabolic rate, so heat production will increase. अगर हीट को एक्सपोज्ड है तो हमें हीट लॉस करना है. हीट लॉस करना है तो वेसल्स को डायलेट करो, इवेपोरेशन करो, तो क्या होगा? स्वेटिंग होगा, वेजोडाइलेटेशन होगा, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा, पैंटिंग हो जाएगा एनिमल्स में, और हीट प्रोडक्शन हमें कम करनी है. हीट प्रोडक्शन कम करनी है तो कैसे करेंगे? रेस्टिंग फेज रह जाएगा, एनोरेक्सिया, अपैथी, मूव करने का मन नहीं है, खाने पीने का मन नहीं है, डिक्रीज्ड TSH सिक्रीशन. ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं. या कोल्ड को हो तो हमें हीट को बचा के रखना है, अगर हीट को है तो हमें हीट लॉस करने की कोशिश करनी है और हीट प्रोडक्शन रोक देनी है. अब आती है आपकी इसकी अप्लाइड. अप्लाइड का मतलब क्या है कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो टेम्परेचर रेगुलेट ना होने से हो सकती हैं. सो दैट इज हीट इलनेस. हीट इलनेस में आपके आ जाएंगे हीट क्रैम्प्स, हीट सिनकपे, हीट एग्जॉशन एंड हीट स्ट्रोक. आप देख सकते हैं हीट क्रैम्प्स कब होंगे? जब बहुत प्रोलॉन्ग्ड हीट को एक्सपोज्ड है. हीट सिनकपे क्या हो गया कि वेजोडाइलेटेशन इतनी हो गई पेरिफेरी में कि आपके हाइपोटेंशन हो गई. हीट एग्जॉशन, नेगेटिव वाटर बैलेंस हो गया, इवेपोरेट ही हो गया वाटर से और नेगेटिव बैलेंस हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया. हीट स्ट्रोक, एक्सट्रीम हाइपरथर्मिया. साइंस एंड सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम है. क्रैम्प्स आएंगे, लो सीरम सोडियम हो जाएगा, सिनकपे में लाइट हेडेडनेस, बेहोशी टाइप फील होगी, है ना, गिर सकता है पेशेंट. हीट एग्जॉशन में बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएगा, हाइड्रेशन बिल्कुल कम हो जाएगी, स्किन एकदम ऐसे फ्लश्ड होगी, स्वेटिंग नहीं होगी, रेक्टल टेम्परेचर बहुत हाई होगा. हीट स्ट्रोक तो मेडिकल इमरजेंसी है, उसको तो मैनेज करना है क्योंकि इसमें रेक्टल टेम्परेचर 41 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव चला जाता है, बिल्कुल स्वेटिंग नहीं होती है एंड डिसोरिएंटेशन. पेशेंट को नहीं पता लगता कि मैं कहाँ हूँ, दिन है या रात है, बिल्कुल डिसोरिएंटेड पेशेंट होता है. सीजर्स भी हो सकते हैं, अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो पेशेंट कोमा में चला जाएगा. ठीक है. प्रिवेंट कैसे करना है? अगर हीट क्रैम्प्स हैं तो आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करें और पेशेंट को मतलब किसी तरीके की एक्टिविटी उसकी रोक दीजिए और उसको रिहाइड्रेट करें, उसको पानी दें या उसको IV फ्लूइड्स दें. हीट सिनकपे में अगेन फ्लूइड रिप्लेनिशमेंट करें, कोई एक्सर्शन नहीं करें. हीट एग्जॉशन में प्रॉपर हाइड्रेशन, मतलब ही नीड्स IV फ्लूइड्स एट दिस टाइम, एडिक्वेट रिप्लेनिशमेंट, इंश्योर एक्लेमेटाइजेशन. बेटा एक्लाइमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि उसको यूज टू करना. अगर सडनली किसी को आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में ले जाओगे तो बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाती, तो ये अडेप्टेशन स्लो होनी चाहिए. हीट स्ट्रोक, इंश्योर द एक्लेमेटाइजेशन, आइडेंटिफाई एंड एक्सक्लूड इंडिविजुअल्स एट रिस्क, अडेप्ट एक्टिविटीज. ठीक है. आई होप दिस इज अंडरस्टूड. नाउ दूसरी तरह की हीट इलनेस क्या है? हाइपोथर्मिया. एक था कि हीट बढ़ गई है, उसके कारण क्या प्रॉब्लम हुई है. एक है आपका टेम्परेचर, बॉडी का कोर टेम्परेचर जो है वो बहुत लो हो गया है. Hypothermia results when the ambient temperature is so low that the body's heat generating mechanisms are not able to maintain the core temperature. हीट इतना कोर टेम्परेचर गिर गया है कि हीट प्रोडक्शन मैकेनिज्म्स जो हैं वो फेल हो गए हैं. मोस्ट कॉमनली ये इन्फेंट्स में देखा जाता है, ओल्ड एज में देखा जाता है. ह्यूमन कैन टॉलरेट द बॉडी टेम्परेचर ऑफ 21 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड विदाउट परमानेंट इल इफेक्ट्स. मतलब 21-24 डिग्री तक हो तो नॉर्मली आप उसको अडेप्ट कर पाता है ह्यूमन बींग, उससे कम नहीं. इससे क्या होगा? मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाएगी. दिस लीड्स टू रिड्यूस्ड रेट ऑफ बोथ ऑक्सीजन कंजप्शन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन. As a result, what happens? Hypocapnia takes place. Decreased PCO2 leads to vasoconstriction and shifting of oxygen dissociation curve to the left. ये चीज़ अपन ऑलरेडी रेस्पिरेशन जब आपको पढ़ाया था तब पढ़ा चुके हैं कि कैसे आपका कर्व लेफ्ट या राइट में शिफ्ट होता है. ठीक है. तो डिक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो जाएगी, एसिड बेस डिसबैलेंस हो जाएगा, क्वाइट ऑब्वियस. देन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, सोडियम पंप एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, ब्लड एबनॉर्मेलिटीज, कोएगुलेशन इम्पेयर्ड हो जाएगा, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, स्लोइंग ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट रेट,
ब्लड प्रेशर लोअर हो जाएगा, रिफ्लेक्सेस बिल्कुल लो हो जाएंगी एंड अल्टीमेटली अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से भी लो रहता है तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा एंड इट कैन इवन लीड टू डेथ. सो वी हैव टू ब्रिंग द कोर टेम्परेचर टू अ वैल्यू ऑफ अराउंड 24 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. सो विद दिस वी फिनिश आवर लेक्चर ऑन टेम्परेचर रेगुलेशन. इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर्स होते कितने हैं, कितने कोर टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए, कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं और फिर उसकी रेगुलेशन कैसे होती है, पेरिफेरल से लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस तरीके से एक्ट करता है रेगुलेट करने के लिए, और अगर रेगुलेट नहीं हो तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं हीट को एक्सपोज होने पे या कोल्ड को एक्सपोज होने पे. थैंक यू वेरी मच.